हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉइज़लेस लॉ। ओके, सो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जब हम एक ट्यूब में, एक नैरो ट्यूब में जब एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका फ्लो रेट कितना होता है, और वो फ्लो रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लो रेट इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्लो रेट। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। As you can see on the board that the Poiseuille law is basically telling about the rate of flow of fluid in a narrow tube which is nothing but Q. So Q is the rate of flow of fluid which is nothing but the volume of the fluid which is flowing per second. Okay, so this capital V is the volume of the fluid flowing per second. This is called rate of flow of fluid, and this is nothing but equal to this formula where this is pi, delta P is the pressure difference, R is the basically radius of the circular tube. This is the fluid, this is the tube, so it has the circular cross section, so the radius of the circular cross section is small r. Okay, 8 eta is basically coefficient of viscosity and L is basically the length of this tube. ओके, तो अगर एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल रेडियस R, इसमें से जो फ्लूइड फ्लो करता है उसका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है दैट इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला एंड इट इज कॉल्ड पॉइज़लेस लॉ. Okay, so now this Poiseuille law is valid for some thing. So for there is a condition where this law basically described. So in this you can see here there is an assumptions to understand, to describe this formula. So here you can see the first one is that जब ये fluid flow कर रहा है that the flow of the fluid should be streamlined or laminar. Okay, so the first point is that if the fluid is streamlined or laminar, the flow rate is described by this formula. Second, the pressure should be constant over any cross section of this tube. Okay, third point is basically, as you can see, जब आप एक लैमिनार फ्लो लेते हो तो आपका अगर जो फ्लूइड है वो जस्ट वॉल्स के कांटेक्ट में जो होता है उसकी वेलोसिटी होती है 0, एंड एज इट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इट्स एक्सिस इट्स वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम. So this is the assumptions, the third assumptions. The fourth assumption is that the tube should be held horizontal. Okay, there is no inclination. If there is inclination तो आपको gravity effect भी डालना पड़ेगा, but this formula is basically based on the horizontal tube, for the horizontal tube. Okay, so this is our fourth points of the assumptions. With all these assumptions, this formula is acquired or derived. Okay, so this is the Poiseuille's law. Now we will derive the formula of Poiseuille's law. Okay, so for this we will consider here we have considered here a horizontal tube, okay, which is a hollow cylindrical tube. So I have a hollow cylindrical tube like this. This is my hollow cylindrical tube. Now in this hollow cylindrical tube I have put let's say a solid cylindrical fluid. So this is inside this hollow cylindrical tube I have this liquid of solid. Okay, so first of all this hollow cylindrical tube has length L. Okay, let's say this hollow spherical tube has radius capital R, and inside this hollow tube I have flowed the fluid
हमने फ्लूइड को फ्लो करा है एंड वी आर कंसिडरिंग अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ट्यूब, a solid cylindrical fluid. So inside this portion, the smaller cylinder inside the hollow cylindrical tube is basically your fluid. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल फ्लूइड हमने कंसिडर कर दिया जो कि कैसा होगा, सॉलिड, जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इस सॉलिड सिलेंड्रिकल का जो रेडियस है, लेट्स कंसिडर दैट रेडियस एज स्मॉल आर। ओके, तो ये हमारा ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब, जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हमने एक फ्लूइड लिया है जो कि फ्लूइड को एक सिलेंड्रिकल सॉलिड कंसिडर हमने कर दिया जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ओके, नाउ see, let's consider there is a pressure difference at the two ends of this tube. ओके, इस ट्यूब में दोनों एंड से प्रेशर डिफरेंस लग रहा है, प्रेशर का चेंज आ रहा है। तो कंसिडर करते हैं कि लेट्स से इधर जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज P प्लस डेल्टा P एंड इस साइड से जो प्रेशर लग रहा है फ्लूइड पे दैट इज P। ओके, नाउ जब इस फ्लूइड पे, ये जो हमारा फ्लूइड है, ये वाला पोर्शन है फ्लूइड, इस फ्लूइड पे इधर से और इधर से दोनों जगह से डिफरेंट प्रेशर लग रहा है, तो ये फ्लूइड एक्सर्ट करेगा फोर्स। ओके, तो इस केस में यहाँ से ऑन द लेफ्ट साइड जो सिर्फ इसमें जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इज नथिंग बट, सो वी आर बेसिकली डिराइविंग दिस इक्वेशन. So from the left side, the force exerted on the left side due to, basically I can write here P plus delta P. In this pressure, the force exerted is nothing but pressure into the area of the cross section of the fluid. कहाँ पर प्रेशर लग रहा है, फ्लूइड पे, कहाँ पे, वो भी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बिकॉज उसका रेडियस r है, तो दिस इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स जो P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज P टाइम्स पाई r स्क्वायर। सो जो नेट प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टू प्रेशर डिफरेंस, सो वी कैन जस्ट से P प्लस डेल्टा P पाई r स्क्वायर माइनस P पाई r स्क्वायर, which is nothing but this is delta P by r square. Okay, so this is the pressure exerted on the fluid due to the, this is the force exerted on the fluid due to the pressure difference at its two ends. Okay, this is the point. Now second thing, what is other thing which is occurring here? So since the fluid has coefficient of viscosity eta, so because we know, we have earlier understood कि जब एक फ्लूइड मोशन में होता है तो उस पे लगता है एक विस्कस फोर्स, ठीक है। तो वो जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है जो फ्लूइड पे लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं जिसका सिलेंड्रिकल आपने शेप ले लिया है। तो इस विस्कस फोर्स जो इस फ्लूइड पे लगेगा दैट इज नथिंग बट माइनस ईटा ए dv बाय dr। ओके, माइनस वाई बिकॉज ये फ्लूइड के मोशन को अपोज कर रहा है। ओके, एंड लेट्स कंसिडर कि ये फ्लूइड इस जगह में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी वी विल सी व्हाट विल बी द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो v है ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि वेलोसिटी किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू r चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर से एक्सिस है। नाउ ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है क्योंकि वो फ्लूइड के मोशन को अपोज करता है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। ओके, नाउ वी कैन सी हेयर दिस विस्कस फोर्स जो इस फ्लूइड पे लग रहा है दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू माइनस ईटा। एरिया कितना है इसका, तो वी कैन जस्ट टेक दिस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि ये विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा है, इस सॉलिड सिलेंड्रिकल फ्लूइड पे लग रहा है। तो अगर इस सॉलिड सिलेंड्रिकल फ्लूइड पे लग रहा है तो हम इसका एरिया लेंगे, किसका, ये एरिया कौन सा है, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर।
So this area is nothing but surface area of the cylinder, which is nothing but 2 pi r l. ठीक है, इसका हमने ये वाला पार्ट ले लिया, दिस कर्व सरफेस एरिया, और उसकी लेंथ ओवरऑल l है तो ये ले लिया. सो दिस इज dv बाई dr. ओके, सो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इस फ्लूइड पे, एक तो प्रेशर की वजह से, एक इसके लिक्विड में विस्कोसिटी की वजह से, इसमें ड्रैग फोर्स की वजह से. नाउ ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे, दिस नेट फोर्सेस ऑन दिस फ्लूइड इज बेसिकली जीरो. व्हाई? बिकॉज एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज वी हैव अज्यूम वन कंडीशन यहाँ पर कि जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन है. अगर फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन जा रहा है, लैमिनार फ्लो कर रहा है, लेयर बाय लेयर लिक्विड फ्लो कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर लेयर्स, तो उनका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, या वी कैन से स्टेडी फ्लो होगा. एक पर्टिकुलर लेयर की स्पीड सेम होगी विद द मोशन, उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा एक लेयर की स्पीड में. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे लेयर्स की स्पीड में चेंज नहीं आएगा, दूसरे लेयर की स्पीड में चेंज होगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, बट एक लेयर की स्पीड रिमेन सेम, तो दैट मीन्स दिस नेट फोर्स ऑन दैट लेयर विल बी ज़ीरो. ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ स्टेडी फ्लो, हमने यहाँ पे फ्लो स्टेडी रखा है, तो बिकॉज ऑफ दिस द नेट फोर्स विल बी ज़ीरो. Now if the net force will be zero, that means ये दोनों जो forces लग रहे हैं that should be zero. So the force due to pressure difference plus force due to viscosity is nothing but equal to zero. Okay, now we can equate these forces. So this is delta P. Okay, I can write one way. So here this is F pressure equal to minus F viscosity, and this is nothing but, here is also negative will cancel out, so this is basically 2 pi eta r l dv by dr, and here the pressure is delta P by r square. We can cancel one r, okay, and there is pi also. So we will get the dv by dr, which is nothing but the velocity gradient, which is delta p r divided by 2 eta l. So this is our velocity gradient. Now velocity gradient means as you changes the r, अगर आप let's say आप एक्सिस पर हो, तो अगर आप एक्सिस पे हो आपका r है 0. ठीक है, आप यहाँ से अपना रेडियस मेजर कर रहे हो फ्लूइड का, अगर आप यहाँ पर हो तो आपका r है 0. जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपका r बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप में वेलोसिटी में भी चेंज आएगा. तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू r, दैट इज फ्रॉम द एक्सिस. ओके, नाउ दिस dv by dr, अब ये कितना है ये देखते हैं हम. अब देखो, बिफोर वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हेयर, एज यू नो, जैसे आई एम ड्राइंग हेयर एक्स एक्सिस, सॉरी आई एम ड्राइंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ये सिलेंडर का हमने एक्सिस ड्रॉ करा है, और ये आपके वॉल्स है सिलेंडर के. ठीक है, तो जो फ्लूइड होता है वॉल्स के अराउंड, हमने अज्यूम करा है इन आर थर्ड point that this fluid at the axis at the walls of the cylinder is 0. तो यहाँ velocity है 0, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसकी velocity में increment होता है. ठीक है, और maximum velocity you can see you will achieve at the axis. So this is the maximum velocity. ठीक है, तो we can say sorry that if r will be 0, मतलब अगर आप इस एक्सिस पे देख रहे हो तो your velocity will be maximum. Okay, if r will be capital R, that is radius of the cylindrical tube, then your velocity will be 0. और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर r पर हो, जैसे हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया था, उस सिलेंड्रिकल ट्यूब का रेडियस हमने r लिया था, तो अगर हम उस r पर ही देखें तो लेट्स से देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ v.
ओके। तो जैसे जैसे हम एक्सिस से नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, या फिर हम अगर वॉल से ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम किसी भी पर्टिकुलर आर के लिए हमने बोल दिया हमारी वेलोसिटी है v, बट r इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। ओके, नाउ विद दिस व्हाट वी कैन सी हेयर, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी का रिलेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू ये r क्या हो रहा है, तो वी कैन फाइंड आउट, सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा p r 2 eta l dr. Okay, we can integrate both sides, so this will become dv is equals to delta p 2 eta, this is l, integration of r dr. ओके, नाउ यहाँ पे जो वेलोसिटी का रिलेशन है कैसा है कि पर्टिकुलर r पे लेट्स से एट r इक्वल टू, ओके लेट्स से एट r इक्वल टू कैपिटल R, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है तो उस केस में वेलोसिटी है 0, और लेट्स से किसी पर्टिकुलर स्मॉल r पर, कोई भी डिस्टेंस स्मॉल r पर उसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, हम यहाँ पर r इक्वल टू 0 नहीं ले रहे, हम एक तो ये केस ले रहे हैं और एक जनरल ले रहे हैं कि कहीं पर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो हमारा वेलोसिटी हमने ले लिया v विच इज डिपेंड ऑन r, एंड एट r वी विल गेट v। ओके, सो विद दिस वी विल गेट v, हेयर लिमिट विल कम्स आउट टू v ऑफ r, हम ऐसे लिख सकते हैं, और जस्ट आई कैन राइट हेयर लिमिट पुट करी हमने तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v में अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो दिस विल बिकम v। सो दिस इज डेल्टा p अपॉन 2 eta l, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो दिस इज r स्क्वायर बाय 2। ओके, एंड आई एम टेकिंग द लिमिट upper and lower capital R small r, putting this delta p upon 2 eta l, this will be become 2 हम बाहर ले लेते हैं, so this will come out to be 4. okay, this will be r square minus capital R square. okay, so this is our v, so this is in terms of r, मतलब वेलोसिटी r के डिपेंडेंस है, सो दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा p 4 eta l, और अगर हम r कैपिटल R को आगे लिख लेते तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वी विल टेक दिस नेगेटिव साइन, तो ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा दिस विल बी द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब जो वेलोसिटी है वो किस तरह से r पे चेंज हो रही है। ठीक है, नाउ वी कैन सी हेयर दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने देखो कि बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इट इज़ लाइक दिस इज़ योर r का वेरिएशन, यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो जब r 0 पे था उस केस पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, यू कैन सी हियर ऑल्सो, अगर आप r 0 करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, और जब r आपका कैपिटल R हो जाएगा विच इज़ द सिलेंड्रिकल रेडियस, हेयर सिलेंड्रिकल रेडियस कैपिटल R, तो अगर हम स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R करेंगे सो दिस विल बी 0, सो आपकी वेलोसिटी यहाँ दिखेगी। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व दिखेगा विच इज़ अ पैराबोलिक फॉर्म। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जैसे जैसे हम r बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि r के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर हमें वेलोसिटी का रिलेशन पता चल गया कि ये r के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हम एक्सिस से नीचे जा रहे हैं या वॉल से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी का क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कर कर आगे का डेरिवेशन देखते हैं क्या करेंगे। ओके, सो आई एम रबिंग दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन रब कर रही हूँ मैं। So this is my capital R, this is the length. okay, ठीक है, अब देखिए ये तो हमने वेलोसिटी का रिलेशन देख लिया r के रिस्पेक्ट में कैसा हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या करें। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है पर सेकेंड फ्लूइड का, तो हम v को कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा है वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू L या X,
इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देखूँ, दैट इज वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, सो आई कैन राइट एज दिस x/t विच इज़ नथिंग बट AV। तो मैं जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है उसको लिख सकती हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है, तो आई कैन राइट dV इज नथिंग बट V टाइम्स dA। ओके, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फ्लो देखेंगे एक छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा 0 से कैपिटल R तक। तो हमें इस पूरे फ्लूइड का, अगर ये पूरा फ्लूइड इस सिलेंड्रिकल कैपिटल R में फ्लो करेगा तो उसका रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा। ठीक है, तो dV क्या है, स्मॉल वॉल्यूम पे आपका कैसा वेरिएशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे, सॉरी दिस विल बी x। Okay, now dV by dt will come out to be dx by dt which is nothing but V times dA। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला V टाइम्स डी हो जाएगा। V को हमने R के रिस्पेक्ट में देखा है, अब dA क्या लेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा ये जो फ्लूइड हमने कंसिडर करा था, उसका सॉलिड जो हमने कंसिडर करा था उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब एक dA मतलब एक छोटे से एरियल एलिमेंट में कितना फ्लो लिक्विड का जा रहा है पर सेकेंड वो देखेंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सिलेंडर से कितना फ्लो जा रहा है पर सेकेंड वो पता चल जाएगा। तो dA कितना होगा, तो इस वाले पोर्शन को हम ऐसे छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रहे हैं इसका, तो दिस एरियल एलिमेंट इज नथिंग बट dA विल बी नथिंग बट 2 पाई R इंटू दिस पोर्शन हम ये ले रहे हैं dr। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर दिया, तो दिस इज 2 पाई R dr। तो दिस इज माई dA। ओके, आई कैन पुट हेयर, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ R, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी R के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो आई कैन पुट दैट वन, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल वॉल्यूम पर सेकेंड कितना है वो निकाल सकते हैं। ओके, सो आई हैव टू रब दिस पार्ट ऑल्सो, तो आई एम रबिंग दिस। Now, so dV by dt will come out to be velocity का क्या है वैल्यू। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं बिकॉज हमें पता है R के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 4 पाई ईटा L डेल्टा P बाई 4 ईटा L R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर टाइम्स dA विच इज नथिंग बट दिस 2 पाई R dr। ओके, ये dV है वॉल्यूम पर सेकेंड, फ्लो ऑफ वॉल्यूम, सो दिस विल बी दिस। नाउ द वॉल्यूम फॉर पर सेकेंड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, सो डेल्टा P बाई 4 ईटा L को बाहर कर लेते हैं पहले, डेल्टा P बाई 4 ईटा L इज बाहर, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2 पाई भी ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर R dr। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा, तो लेट्स से स्मॉल r इक्वल टू 0 टू कैपिटल R। ठीक है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉलिड को इंटीग्रेट कर दे, तो इनके एरिया को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये पूरा वॉल्यूम कवर, पूरा एरिया कवर हो जाएगा इस सिलेंडर का। सो डेल्टा P, दिस 2 से 2 कैंसिल, 2 ईटा L पाई, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं R स्क्वायर R माइनस R क्यूब dr। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाई 2 माइनस R4 बाई 4, दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, एंड दिस इज डेल्टा P बाई 2 ईटा L पाई। सो डेल्टा P पाई 2 ईटा L। ओके, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस विल बी 4, दिस इज 2 टाइम्स, और वैल्यू पुट कर देते हैं R की भी, सो दिस विल बिकम R4 माइनस R4। ठीक है, ये वाला तो 0 हो जाएगा तो हम वो नहीं ले रहे, सो दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा P पाई R4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L। दिस इज आर वॉल्यूम ऑफ फ्लो per second. Okay, this is our formula which we have derived it.
ओके। सो हमें यहाँ से क्या पता होना चाहिए कि जब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा एंड्स पे उतना ज़्यादा फ्लो लिक्विड का होगा, जितना ज़्यादा पाइप आप मोटा लोगे उतना ज़्यादा फ्लूइड होगा लिक्विड का। इसी तरह से जितनी कम आप विस्कोसिटी लोगे, मतलब आपका जो लिक्विड है फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी कम हो उतना उसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा, और जितनी कम आप उसकी लेंथ लोगे उतना भी आपका फ्लो रेट बढ़ जाएगा। ओके, so I hope this point is clear to you, this derivation is clear to you, and thank you so much.